3, 2, 1. Please start, sir. We are live. Good evening to one and all. Thank you for joining with us. On behalf of Nash 24/7, I welcome you all in today's live Facebook program. Today, we are going to have an interactive session on fatty liver, a growing disease burden. We have with us today a renowned gastroenterologist, Dr. Deepal Lahoti. Sir has over 3 decades of experience in the field of gastroenterology and is currently the director and head at the Department of Gastroenterology, Hepatology and Endoscopy, Max Super Speciality Hospital, Delhi. Sir has session and chaired in several national and international conferences and has numerous publications on his name. So on this note, I would like to hand over the session to Dr. Deepak. Thank you, Vibhor, and thank you, Zydus, for giving me this opportunity to interact with many people who are interested in knowing more about fatty liver disease. I just want to share my slides. Give me a moment. So, we continue till the slides are visible. Fatty liver disease is a common problem. And why we have chosen this topic? Because you have gone through many epidemics, and recently one of the biggest epidemic was COVID or coronavirus epidemic, which involved almost whole of the world. But coronavirus became very prominent and well debated topic all over the world because it killed so many people instantly. If you recall, April 2021, we lost a lot of people all over the globe. But why we have not been discussing fatty liver? हम fatty liver को क्यों नहीं discuss करते? हम fatty liver को इसलिए discuss नहीं करते. Fatty liver is not a disease which instantly kills, or it can be transmitted from one person to another person. No, it is not a communicable disease. But if you count the number of people dying from liver diseases, heart diseases, and diabetes, which are offshoots of fatty liver disease only, you will realize that fatty liver disease may prove to be a bigger killer than even coronavirus. इसलिए हमको फैटी लिवर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. Fatty liver disease, unlike coronavirus, is a slowly growing problem. It affects your liver silently. That is why it is called a silent killer. And I bet, along with diabetes and obesity, fatty liver is going to be one of the biggest epidemics the world has ever faced. And these changes are visible in Western world and even in less developed countries. You can see a lot of people are now overweight and obese. Almost every third person in urban India has fatty liver, and this fatty liver has potential to injure our liver, cause cirrhosis and liver failure. In many countries, fatty liver has become one of the most common indications for liver transplantation already. So such is the magnitude of fatty liver. Before, if there are questions, I will be able to take them whenever there is one. Or you want questions at the end of the talk? So this is one of the biggest epidemics. So what is fatty liver? Fatty liver क्या है? हम सब fatty liver की रोज बात करते हैं, but fatty liver क्या है? देखिए, आप इसमें normal liver में
फैट कंटेंट इज वेरी लो। जो हम लोग डाइट खाते हैं उसमें जो फैट एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो सब हमारे लिवर में जाता है डाइजेशन और एसिमिलेशन के लिए। तो लिवर इज लाइक किचन इन आवर बॉडी। Whatever you bring from market, you bring sabji, you bring dal, and you cook it in your kitchen. Similarly, whatever we eat has to go through our liver for assimilation and digestion. पर जब इसमें इस लिवर में किसी वजह से इसका फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इस और लिवर का फैट कंटेंट 5% से बढ़ जाता है, तो हम इसको फैटी लिवर बोलते हैं। आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, this fat content starts damaging our liver. फैटी लिवर की क्या कोई सिम्टम्स हैं जिससे हम कह सकें कि हमारे पेशेंट में फैटी लिवर है? अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव नो सिम्टम्स। उन्हें नहीं पता होता, कि पेशेंट्स को नहीं पता होता कि उनको फैटी लिवर है। वे जब कोई सिम्टम होगा तभी तो कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा। इसलिए ये बीमारी हमारी बॉडी में छुपी रहती है और धीरे 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 डैमेज करती रहती है। कई दशकों के बाद, आफ्टर मैनी डिकेड्स, दिस स्टार्ट्स डैमेजिंग आवर लिवर, and then liver function tests get deranged, and then we start getting symptoms of liver failure like jaundice, pedal edema और पैरों पे सूजन आना, accumulation of ascites या पेट में पानी जमा होना, etc. etc. Some patients present with cirrhosis and its complications like bleeding from mouth and rise of ammonia leading to hepatic encephalopathy. तो ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी छुपी रहती है, पर बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें पेट में ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे जहाँ हमारा लिवर होता है वहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट और दर्द हो सकता है। सिमिलरली बहुत सारे लोगों की भूख में कमी आती है और उनको फैटीग की फीलिंग होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये सिम्टम तो बहुत कॉमन है, फैटीग होना, काम ना कर पाना, एक्सरसाइज ना कर पाना। तो ये सिम्टम जरूरी नहीं कि फैटी लिवर के हों। इसलिए ज़्यादातर लोगों में फैटी लिवर हम डिटेक्ट करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट करके या अल्ट्रासाउंड करके। हम फैटी लिवर उन लोगों में भी डिटेक्ट करते हैं जो लोग ओबीज हैं और जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों में ही फैटी लिवर के पेशेंट्स बहुत मिलते हैं। क्या फैटी लिवर हमारे लिए डेंजरस हो सकता है? जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हम फैटी लिवर को छोड़ दें तो कुछ लोगों में, हर आदमी में नहीं, कुछ लोगों में एक सर्टेन परसेंटेज में हमारे लिवर को ये अफेक्ट कर सकता है, सिरोसिस कर सकता है और लिवर फेलियर कर सकता है। Fatty liver is the most common cause of cirrhosis of liver now, and not only it leads to liver problems, surprisingly it also leads to increased risk of diabetes and heart disease. And you will be surprised to know that there are many other diseases associated with fatty liver in far greater numbers than expected. They are obesity. Overweight and obesity status is associated with fatty liver. High insulin resistance, that means your insulin is not working, leading to pre-diabetes or diabetes. Hypertension, high triglycerides, abnormal lipids, and low HDL cholesterol, that means your good cholesterol is low, and it all culminates in heart problems. So many patients who have fatty liver disease today, they may suffer from heart disease at an early stage. You are also already seeing lot of Indians, lot of Asians suffering with heart disease at an early age of 40 or 45, or developing diabetes at an early age. This is also linked with fatty liver disease. One of the questions which comes to mind is,
if I do not get treated for fatty liver, what can happen to me or my liver? You see, if you don't get treated or you don't follow lifestyle improvement with fatty liver, the liver disease may progress over a period of time, leading to destruction of our normal liver cells. And this can lead to cirrhosis and liver failure. The other question which comes to our mind is my fatty liver disease reversible? Yes, it is very much reversible in early stages. But if your liver injury has crossed a limit, it has gone to stage 3 or stage 4, then it may not be entirely reversible. Even with advanced liver injury, it is always good to follow lifestyle improvements and treatment of fatty liver to reverse whatever is possible as far as liver disease is concerned. So, here you can see actually the progress uh, of non-alcoholic fatty liver disease. You can see on the left hand side healthy liver going to fatty liver, and then there is many patients will develop inflammation. Inflammation will lead to fibrosis and ultimately cirrhosis. So after stage 3, the green uh, arrow is missing. The reversible part is missing. Up to stage 3, you can reverse the disease with treatment. And why do we develop fatty liver? We develop fatty liver because there is excess of fat which cannot be metabolized. And this occurs when you are obese, when you are diabetic, when you take alcohol, this excess fat and with high insulin resistance uh, cannot be melted away and it starts producing liver damage. The $1,000,000 question which is asked, and everybody is worried when one comes to know that he has fatty liver, how can we assess the damage to our liver? हमसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर क्या हमारा लिवर काफ़ी खराब हो गया, या आप बताएंगे 20% खराब हुआ, 30% खराब हुआ, किसी और डॉक्टर ने बोला है कि अभी 50% खराब है, तो इसका हम कैसे अंदाज़ा लगाएं? कुछ इसमें अंदाज़ा हम आपको एग्जामिन करके और आपके ब्लड टेस्ट देख के भी लगा सकते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट हुए, टेस्ट फॉर डायबिटीज़ हुए और इंसुलिन और कुछ और हेपेटाइटिस बी और सी के हम लोग टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं लिवर इलास्टोग्राफी या फाइब्रो स्कैन से भी हम एसेस करते हैं कि हमारा लिवर कहाँ तक खराब है। पर अगर आप ये देखें यहाँ पे पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हो रहा है और नीचे आप देखते हैं कि फैटी लिवर की डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं। फैटी लिवर पेशेंट्स जो डायबिटीज़ हैं, ओबेसिटी हैं, उनको भी ज़्यादा होता है। और हमारा आपसे ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोसिस नहीं है पर आप डायबिटिक हैं या आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, तो आप अपना फैटी लिवर के लिए ज़रूर जांच करवा लें ताकि हम फैटी लिवर को टैकल कर सकें। तो एक जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम अपने लिवर को कितना लिवर ख़राब है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, ये एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रो स्कैन ऑफ द लिवर। और अब ये फाइब्रो स्कैन जगह जगह अवेलेबल है और बहुत चीप है। ये अल्ट्रासाउंड जैसी एक मशीन से हम फाइब्रो स्कैन को कर सकते हैं। इसमें कोई आपके नीडल नहीं जा रही, कोई चीज़ आपकी बायोप्सी नहीं हो रही है। ये 3 से 5 मिनट में आपका टेस्ट हो जाता है और ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि हमारे लिवर में कितनी फाइब्रोसिस हो गई है, हमारा लिवर कितना स्टिफ हो गया है और हमारे लिवर इस समय अंदाजन किस स्टेज में। और ये लिवर फाइब्रो स्कैन हम इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमने एक फैटी लिवर का ट्रीटमेंट किया, हमने लाइफ स्टाइल फॉलो किया, हमने अपना वजन घटाया, हमने डायबिटीज इम्प्रूव की, उसके बाद हम फिर से फाइब्रो स्कैन करके देख सकते हैं कि क्या हमारे लिवर की फाइब्रोसिस कुछ हद तक रिवर्स हुई। और ये मशीन
हमें इस तरीके से बताती है F0, F1, F2, F3 एंड F4। जो F0 का मतलब है कि हमारी लीवर की स्टिफनेस बिल्कुल 0 है, और F4 का मतलब है कि हमारी लीवर की स्टिफनेस बहुत हाई है और हमें सिरोसिस हो गई। फैटी लीवर का क्या ट्रीटमेंट है, आप जान के हैरान होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो फैटी लीवर का है वो है आप अपनी डायबिटीज, अगर आप डायबिटीज हैं उसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करें, उसको मजाक न समझें। देखिए फैटी लीवर भी हमारे लीवर की डायबिटीज ही है, जो डायबिटीज के मैकेनिज्म्स हैं वही फैटी लीवर के मैकेनिज्म्स हैं, ओनली दैट दे अप्लाई टू आवर लीवर। तो वेरी गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज आल्सो लीड्स टू कंट्रोल ऑफ फैटी लीवर। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो आप वेट लॉस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी हमारे बॉडी में फैट है वो तब तक हमारे लीवर अच्छा नहीं होगा जब तक कि हम एक्स्ट्रा फैट को लूज नहीं करें। रेगुलर एक्सरसाइज और डाइटिंग से भी हम अपनी एक्स्ट्रा फैट को हटा सकते हैं और फैटी लीवर को मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैट लीवर में है जो डैमेज कर रहे हैं, या हम अपनी फाइब्रोसिस लीवर की कैसे घटाएंगे, इसके लिए बहुत सारी मेडिकेशन हैं जो विटामिन ई, सारुब्यूटाजॉल, ओबेटोकॉलिक एसिड, ऐसी कुछ मेडिसिन हैं। जब आप अपने फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाएंगे, लीवर के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो आपके ब्लड के टेस्ट और आपके अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन को देख के वो ये डिटरमाइन करेंगे कि आपको इनमें से कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए क्या। बहुत सारी मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि दुनिया में विटामिन ई और ओबेटोकॉलिक एसिड वेस्टर्न वर्ल्ड से आई हैं, और बट ये अभी भी इनकी जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी है उन्होंने इनको अप्रूव नहीं किया है। तो जो सारोग्लिटाजोल है ये इंडिया से निकली है, और इसको इंडिया में ऑलरेडी इस बीमारी के लिए ड्रग अप्रूवल मिल गया है। तो सारोग्लिटाजोल इज वन ऑफ द main medication which I use for my patients of fatty liver disease. लाइफ स्टाइल में अल्कोहल नहीं पीना, छोटी मात्रा में भी नहीं पीना, सोशल अल्कोहलिज्म में भी इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि छोटे अमाउंट अल्कोहल का भी बड़ा डैमेज कर सकता है। लिमिटेड कैलोरीज खानी है, जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उससे 400 से 500 कैलोरीज कम खानी है ताकि आपका वेट कम हो। बेहतर ये है कि हम एक डाइटिशियन को कांटेक्ट कर लें और उनसे एक बार हम वेट डाइट चार्ट जरूर बना लें। बेसिकली हमें लो कैलोरी और लो फैट डाइट खानी है। डायबिटीज के कंट्रोल के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ओरल मेडिसिन, इंसुलिन और डायबिटीज डाइट। ये भी याद रखिए कि कई डायबिटीज की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका फैटी लीवर पर भी एक बेनिफिशियल इफेक्ट है, एडवांटेजेस इफेक्ट है। तो यह चीज़ आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत लोगों के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अगर ये लेवल आपके हाई है तो आप इनके लिए भी अलग से मेडिसिन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि जो सारोग्लिटाजोल मेडिसिन है वो सिर्फ फैटी लीवर को ही कंट्रोल नहीं करती बल्कि हाई ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करती है। तो देखिए एक ही दवाई से आप फैटी लीवर डिसीज और ट्राइग्लिसराइड और कुछ हद तक शुगर का कंट्रोल, तीनों चीज़ें आप एक ही मॉलिक्यूल से कर सकते हैं। ओबेसिटी और वेट लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है फैटी लिवर डिसीज के लिए। इनफैक्ट डाइटिंग एंड वेट लॉस, दीज आर टू पिलर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फैटी लिवर डिसीज ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ मेडिकेशन। एक सिंपल सा बीएमआई चार्ट आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। आप अपना बीएमआई खुद डिटरमाइन कर सकते हैं। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स,
इट इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ओवरवेट है या ओबीज है तो आप अपने बीएमआई को मॉनिटर भी कर सकते हैं। And आप कैसे वेट लूज करें, एक्सरसाइज और डाइट मैंने आपको बता ही दिया है। WHO की रिकमेंडेशन है, जो लोग भी ओबीज हैं वो 3 से 4 किलोमीटर वॉक डेली करें और 20 मिनट की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज डेली करें। हमारे भाग दौड़ के जीवन में कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जो भी आप अपने इंडोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं वो करें, और करना बहुत ज़रूर है, क्योंकि अगर आपने वेट नहीं घटाया तो आपका फैटी लिवर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वेट रिडक्शन अगर आपके सिर्फ एक्सरसाइज और डाइटिंग से नहीं पॉसिबल हो रहा है तो हम बहुत सारी वेट रिडक्शन की दवाइयाँ भी देते हैं, और साथ में कुछ एंडोस्कोपिक मीन्स हैं जैसे बैलून या बैरियाट्रिक सर्जरी, हम इनको भी एप्रोप्रिएट सेटिंग में फैटी लिवर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ आपको कि बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमारे जब हमारा लीवर अफेक्ट होने लगता है तो हम देते हैं, और इन सब में से जो मेरी चॉइस है वो सारोग्लूटाजोल। अब सवाल ये आता है कि हम कब तक मेडिसिन लें। इस बात का जवाब आपके जो डॉक्टर आपको मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वही दे पाएंगे। अगर आप जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, आप लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन को सीरियसली लेते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये मेडिकेशन रुक जाए आपके और आपकी लिवर स्टेबल हो जाए। अदरवाइज कई बार हमें बहुत लंबे समय के लिए ये मेडिकेशन लेने पड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं आपका सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ एकत्रित हुए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपके सामने फैटी लिवर पर कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for such a lucid talk. And कुछ questions I'm getting, so we'll take it up one by one. So सर, पहला क्वेश्चन ये है कि फैटी लिवर किस तरीके के पेशेंट्स में ज्यादा प्रेवलेंट होता है? देखिए, फैटी लिवर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ओवरवेट या ओबीज हैं। आप अगर आज आप अपने घर में देखें, आप अपने ऑफिस में देखें, आप किसी मार्केट में देखें, मॉल में देखें, आपको हर सेकंड और हर थर्ड आदमी ओवरवेट और ओबीज मिलेगा। और इंडियंस में तो खास तौर से सेंट्रल एब्डोमिनल ओबेसिटी इज वेरी कॉमन, हमारे पेट पे ज़्यादा फैट होगा। ऐसे लोगों में फैटी लिवर बहुत कॉमन है। अगर हम कोई सिम्टम्स ना भी हो, हम इनका अल्ट्रासाउंड और इनके ब्लड टेस्ट करा के देखें तो बहुत लोगों में हमें फैटी लिवर मिलेगा। तो दिस इज, अगर आप डायबिटिक हैं, आप ओवरवेट हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप हार्ट डिसीज के मरीज हैं या विक्टिम हैं, तो आपको फैटी लिवर डिसीज के लिए भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैटी लिवर कितना कॉमन है और मुझे कितने ड्यूरेशन में फैटी लिवर का टेस्ट कराना चाहिए? आई एम हेल्दी पर्सन एंड आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे बोलना चाहिए था कि जो हम आज फैटी लिवर डिसीज की बात कर रहे हैं, हम उस फैटी लिवर की बात कर रहे हैं जब हम अल्कोहल नहीं पीते हैं। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको तो अल्कोहल की वजह से भी फैटी लिवर डिसीज हो सकती है ना? तो अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, आप अल्कोहल भी नहीं पीते हैं, तो हमें ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप फैटी लिवर के लिए ज़रूर इन्वेस्टिगेट करवाएं। हाँ, अगर आप रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि बहुत ऑफिस में होता है वो, या इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, या बहुत सारे लोग अपने एक्सपेंसेस पे भी जो बहुत विजिलेंट है हेल्थ के, वो करवाते हैं टेस्ट। तो अगर आपकी यंग एज है और आप ओवरवेट नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी भूख ठीक है, तो फैटी लिवर डिसीज हम सस्पेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी
रूटीन टेस्ट में ये आ सकता है कि आपको फैटी लिवर है और आपके लिवर के एंजाइम्स बढ़े हैं। तो मेरा ख्याल आपका आंसर होना चाहिए कि 2 साल या 3 साल में आप अपने रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते रहिए। आप खासतौर से लिवर फंक्शन टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। इफ दे शो एनी एबनॉर्मैलिटी देन यू कैन get yourself investigated further for liver diseases including fatty liver. The next question is how much proper calories can I consume? आपकी आवाज क्लियर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। सर अगला सवाल ये है कि मैं एक दिन में कितने कैलोरीज कंज्यूम कर सकता हूँ? सॉरी विभोर, कुछ हेलो। हाँ, आप बताइए। यस सर, अगला सवाल ये है कि मैं एक दिन में कितने कैलोरीज कंज्यूम कर सकता हूँ? हाँ, ये तो बहुत साधारण सी बात है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ या स्विमिंग के लिए जाता हूँ, या मैं एक मेरे काम में बहुत लेबर है, सामान उठाने का काम है, बहुत मेहनत का काम है, तो मेरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बट अगर आप बात करें वाइट कॉलर वर्कर्स की, जो ज़्यादातर ऑफिस जाते हैं, कार में बैठे ऑफिस चले गए, वहाँ जाके अपनी सीट पे बैठ गए, फॉर एग्जांपल जैसे आईटी वर्कर्स हैं, 8-8 10-10 घंटे वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, खाना खाने के लिए भी नहीं उठते, वहीं पर उनका खाना आ जाता है। तो ऐसे लोगों को ऑब्वियसली कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम होगी, और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बट आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट आपके बॉडी वेट और बॉडी फ्रेम पे भी डिपेंड करती है, आपके बीएमआई पे भी डिपेंड करती है। बाय एंड लार्ज ये हम इंटरनेट से हम जाके अपनी बॉडी कैलोरिक रिक्वायरमेंट, अपना वेट और हाइट फीड करेंगे और अपना एक्टिविटी लेवल फीड करेंगे, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट क्या है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन is there any surgical procedure to treat fatty liver? There is no direct surgical procedure which can be done on liver to remove the fat. ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसमें से फैट सब कर लेंगे, और एक बारी हमने कर भी लिया मान लीजिए किसी भी तरीके से, पर ये तो फैट जो हम खाते हैं रोज हमारे लीवर के थ्रू जाता है, वो तो दूसरे दिन बिल्डअप हो जाएगा। बट हाँ, कुछ ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो हमारे डायबिटीज़ को बेहतर कंट्रोल करते हैं, हमारे ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं, और इसलिए वो इनडायरेक्टली हमारे फैटी लिवर को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आप वेट घटाने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी है, स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी है, और इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड प्रोसीजर्स हैं। एंडोस्कोपी में हम वेट घटाने के लिए बैलून्स डालते हैं पेट में। सिमिलरली हम और डिवाइसेस हैं, एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, मतलब स्टमक की कैपेसिटी को छोटा करते हैं। तो इन सब से क्या होता है, हमारी कैलोरिक इनटेक कम हो जाती है और हमारा वेट घटता है, हमारी डायबिटीज़ बेहतर कंट्रोल होती है और हमारा फैटी लिवर इम्प्रूव होता है। Right. So sir, we'll take the last question. The question is, can fatty liver affect only to the patients who are overweight or obese? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग ओबीज हैं या डायबिटिक हैं सिर्फ उन्हीं को फैटी लिवर होगा। फैटी लिवर उन लोगों को भी होता है जो लीन एंड थीन है। अगर कोई आदमी लीन एंड थीन है और उसको फैटी लिवर है, तो ये तो उसके लिए भी खराब बात है, ज़्यादा खराब बात है। करीब 20% फैटी लिवर उन लोगों में डेवलप होता है जो ओबीज या डायबिटिक नहीं है। और भी कई कारण हमारे हो सकते हैं फैटी लिवर के, जैसे लिपिड मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज एक्सेट्रा। तो उनको तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि और क्या कारण है। जो लोग ओबीज नहीं है या बिल्कुल पतले दुबले हैं, उनको हम लीन फैटी लिवर बोलते हैं। तो उनमें भी फैटी लिवर उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे ओबीज पेशेंट में। बस यही फर्क रहता है कि हाँ, उनको वेट घटाने की जरूरत नहीं है। Right. So
With this, we come to an end of question answer session, sir. And thank you so much for such a lucid and wonderful talk. I'm sure this session would be very helpful for all the patients of fatty liver and their caregivers as well. I would also like to thank all our participants for their participation, active participation. And to stay updated more on NAFLD, NASH, and fatty liver, do like and follow our page NASH 24/7 on Facebook and YouTube. Thank you, everyone. Thank you so much, sir, once again for such a talk. Thank you.